Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video you all understood the new words of lesson 5. Now in this video we will read the lesson and understand it thoroughly. Let's start. The honest woodcutter, ईमानदार लकड़हारा. Honesty is the great virtue. ईमानदारी होना एक महान गुण है. Long ago there lived a woodcutter in a small village. बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था. He was sincere in his work and very honest. वह अपने काम में सच्चा व ईमानदार था. Every day he set out into the nearby forest to cut trees. प्रतिदिन वह पेड़ों को काटने के लिए पास के जंगल में निकल जाता था. He brought the woods back into the village and sold them out to a merchant and earned money. वह लकड़ियों को गांव में वापस लाया और उन्हें एक व्यापारी को बेच दिया और पैसे कमाए. He earned just about enough to make a living, but he was satisfied with his simple living. उन्होंने अपने जीवन में इतना कमाया कि वह अपने जीवन का गुजारा कर सकें, लेकिन वह अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे. One day, while cutting a tree near a river, his axe slipped out of his hand and fell into the रिवर. एक दिन एक नदी के पास एक पेड़ को काटते समय उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई. The river was so deep he could not even think of getting it back on his own. नदी इतनी गहरी थी कि वह उसे वापस पाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था. He only had one axe which had gone into the river. He was very worried, thinking how he would be able to earn his living. उसके पास केवल एक कुल्हाड़ी थी जो नदी में चली गई थी. वह यह सोचकर बहुत दुखी था कि वह कैसे अपना जीवन यापन कर पाएगा. He was very sad and prayed to God. वह बहुत दुखी था और उसने ईश्वर से प्रार्थना की. He prayed sincerely, so God appeared in front of him and asked, "What is the problem, my son?" The woodcutter explained the problem and requested God to get his axe back. उन्होंने ईमानदारी से, बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और पूछा कि क्या दिक्कत है मेरे बेटे को. लकड़ी काटने वाले ने अपनी समस्या बताई और विनती की भगवान से कि मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस चाहिए. God put his hand deep into the river and took out a silver axe and asked, "Is this your axe?" The woodcutter looked at the axe and said, "No, this is not my axe." भगवान ने नदी में अपना हाथ डाला और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुडकटर ने कुल्हाड़ी को देखा और कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. क्योंकि वो कौन सी कुल्हाड़ी थी? सिल्वर, चांदी की कुल्हाड़ी थी. जो भगवान ने कुल्हाड़ी को नदी में से निकाली वो चांदी की थी. तो क्या बच्चों, जो लकड़हारे की नदी में एक्स गिरी वो कौन सी थी? लोहे की थी. यस, सिल्वर की नहीं थी. तो यहाँ लकड़हारे ने अपनी ऑनेस्टी दिखाई. सो गॉड put his hand back deep into the water again and showed a golden axe and asked, "Is this your axe?"
The woodcutter looked at the axe and said, "No," God said, "Take a look again, son." इसलिए भगवान ने अपना हाथ फिर से गहरे पानी में डाल दिया और एक गोल्डन यानी स्वर्ण कुल्हाड़ी दिखाई और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर से यही कहा कुल्हाड़ी को देखकर कि नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो भगवान बोले, एक बार फिर से देख लो बेटा। This is a very valuable golden axe. Are you sure this is not yours? The woodcutter said, "No, it's not mine. I can't cut the trees with a golden axe. It's not useful for me." यह बहुत मूल्यवान स्वर्ण कुल्हाड़ी है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा नहीं है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है। मैं पेड़ों को सुनहरे कुल्हाड़ी से नहीं काट सकता। यह मेरे लिए उपयोगी नहीं है। God smiled and finally put his hand into the water again and took out the woodcutter's iron axe and asked, "Is this your axe?" To this the woodcutter said, "Yes, this is mine. Thank you." भगवान मुस्कुराते हुए अंत में फिर से अपना हाथ पानी में डाल दिया और लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी निकाल ली और पूछा, क्या यह आपकी कुल्हाड़ी है? इस पर लकड़हारे ने कहा, हाँ, यह मेरा है, धन्यवाद। God was very impressed with his honesty, so he gave him his iron axe and also the other 2 axes as a reward for his honesty. ईश्वर उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। प्रभावित मतलब क्या हुआ बच्चों? बहुत उससे इम्प्रेस थे, बहुत खुश थे। क्यों पता है ना? क्यों? क्योंकि लकड़हारे ने गॉड से ना तो गोल्ड एक्स लिया ना सिल्वर कुल्हाड़ी ली, उसने अपनी वही पुरानी वाली लोहे की कुल्हाड़ी ली। क्यों? क्योंकि वह उससे रोज़ अपना जीवन काटता था, उससे वो लकड़ी काटता था, उसको बेचकर वह अपने पैसे कमाता था, उससे अपना रोज़ का जीवन जीता था। इसकी वजह से गॉड बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी और अन्य 2 कुल्हाड़ियों को उनकी ईमानदारी की वजह से पुरस्कार के रूप में दे दिया। तो देखा बच्चों आपने कैसे एक वुडकटर ने अपनी ऑनेस्टी दिखाई। ना उसने सिल्वर एक्स ली ना गोल्ड एक्स, भले ही वो कीमती थी। वो चाहता तो उसको ले सकता था और बेचकर खा सकता था, लेकिन कब तक? जब तक वो पैसे ख़त्म नहीं हो जाते। पर उसके काम की न थी वो दोनों कुल्हाड़ियाँ। उसको बेचकर भी तो कितने दिन खाता, इसलिए उसको कोई लालच भी न थी। वुडकटर को तो सिर्फ लकड़ी काटने के लिए उसको अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी, जिससे वह जीवन भर कमा कर खा सके। Moral of the story: we should always be honest in our life. हमें अपने जीवन में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। I hope you all understood this story. Now students, you have to read this lesson thoroughly.